سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بھارت نے بطور پالیسی پاکستان کے خلاف اپنایا ہوا ہے۔ بھارت کے مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی حمایت اور مالی معاونت کر رہا ہے۔ بھارتی سیاسی قیادت متعدد مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت ڈوول ہے۔ امریکہ اور کینیڈا سمیت کئی ممالک بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بتا چکے ہیں۔ We must understand that terrorism is an internal problem of India as a result of the continuous oppression which the India does on its minorities as part of its policy against Muslims, especially Kashmiris, Sikhs, Christians, other minorities, and even its own backward caste. So rather than addressing these grave injustices, inequalities, and doing soul searching, it is very quick to put all the blame on Pakistan. This externalization of the internal problem of terrorism, this goes as a policy in India. And what's it's turning it to? Because of this senseless blame game that the Indians are resorting to, it is bringing the thresholds between India and Pakistan to dangerously low level. To such levels that where one incident of terrorism or an act of violence can be turned into an act of war. This foolhardy, this hubristic political mindset of India is putting the destiny of 1.6 billion people of this region at risk. Not only that, it is putting the lives of this 1.6 billion people hostage in the hands of non-state actors, third parties who might be interested because of their own very reasons of a military conflict between India and Pakistan. So what is the light here? Where to go? The light only here is the responsible and mature manner in which Pakistan is acting. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور موجودہ علاقائی توازن پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ Absolutely no concern whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. It's because there's a sea of difference between these two countries and Pakistan. We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. Hence, I have said it before, I will say it again very clearly, that seeking military space for conflict with an established nuclear power for elusive objectives is absurd, sheer stupidity and inconceivable. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست ٹیکسس میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 119 ہو گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 36 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے 173 افراد لاپتہ ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں مسکراہٹ محبت نہیں طنز بھی ہو سکتا ہے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، ایک مسکراہٹ سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ گورنر کا کہنا ہے کہ مسکراہٹ اپنی جگہ، ایک ووٹ بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ مسکراہٹ صرف محبت کی طنز کی بھی ہوتی ہے۔ سی ایم صاحب آئے تھے اور ایک آفیشیل سیریمنی تھی چیف جسٹس صاحب کی، اور اس پہ نارملی جو ہے وہ سی ایم جو جس صوبے کا بھی ہو اس کو آنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے چیف جسٹس صاحب بہت دیر ہوتے تو اس کے لیے وہ آئے تھے۔ دعوت نامے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اور چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے تو آئے تھے، ایک سیریمنی تھی۔ اب ڈیفینیٹلی کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے آپ کو چاہے وہ آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل اوپوننٹ ہو، آپ نے ان کی جو ہے وہ
खातिर तवाज़ा करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, डिस्कशन होती है। सियासी जमातों के लीडरान भी थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मौजूद थे, अमीर मकाम साहब भी मौजूद थे, शाहजहां यूसुफ साहब भी थे PMLN के, और नॉर्मल ऐसी डिस्कशन थी, कोई ऐसी चीज़ थी जिस पे जो है वो बातचीत हो। सब कुछ है, लेकिन जिस दिन भी हमारे साथ एक वोट ज़्यादा हुआ अदम एतमाद के लिए, हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो कोई खुफिया मुलाकात नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो गवर्नर हाउस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। कहा PTI की तहरीक काफ़ी वक्त से शुरू है, अब दोबारा तहरीक चलाने का फैसला किया है। 2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या तहरीक होगी। मैंने कोई इस तरह की मुलाकात करनी भी हो ना, तो मेरी एक आदत है, आप सबको पता है, मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। मैं तो खुद बताता हूँ कि भाई फलाने से मुलाकात हुई, फलाने से नहीं हुई, लेकिन ये तस्वीर काट के, बंदे काट के ये शो करना कि ये तो कोई सियासी मुलाकात हो रही है, और उसके ऊपर जो ट्रॉलिंग करते हैं, बैठे हुए हैं, हल्फ में शुरू होने से पहले सारी बात है, पहले बैठ के और उसके बाद फिर इकट्ठे जाना पड़ता है, तो ये बेसिकली उसके लिए मैं गया था। आप मुलाकात उसको कहना कि जब मैं स्पेशली सिर्फ गवर्नर साहब को मिलने जाऊं। तहरीक तो हमारे बड़े वक्त से शुरू है, और आपने देखा उस तहरीक में हमने हर तरह की कुर्बानियाँ भी दी हैं, हर तरह की कोशिश भी की है। बाकी फैसला तो अल्लाह ताला करता है, और अभी फिर हमारा दोबारा एक तहरीक का अनाउंस हुआ है, और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएगा कि उस तहरीक में हम जो भी हमारे आपस में फैसला होगा किस तरीके से करनी है, तो उस तरीके से इंशाल्लाह आपको आने वाले 1-2 दिन में ही इंशाल्लाह उसका नज़र आएगा इम्पैक्ट। लेकिन अभी ऐसा है कि हम चूँकि कोई भी तहरीक करने के लिए एक प्लान बनाकर पहले से अनाउंस नहीं करते, क्योंकि मुखालफिन भी बहुत तैयारी कर लेते हैं, और पहले से हमारे लोगों को स्पेशली हमारे और सूबों में, यहाँ तो मसला नहीं है, वो पहले से ही पकड़ धकड़ करके जबर शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि तहरीक का हिस्सा बनना बानी PTI के बेटों का हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 85% सीटें अब भी PTI के पास हैं। इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का ये हक है कि जो उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको फिलफौर सुना जाए। कोई वजह नहीं है कि इस मामले को ना सुना जाए। इमाम का एक जज्बाती जो ताल्लुक़ है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौइयत का हुआ करता है, तो कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने। जो हुकूक हमें सन 47 से पहले हासिल थे, वो क्या वजह है कि आज हमें हासिल ना हो? क्यों ये समझा जाए कि हर सियासी जो अमल है, हर सियासी जो एक कट है, वो कोई जुर्म है जिस पे हमला करना है रियासत को, सरकार को? तो ये एक इंतहाई गलत रविश है, और यही असल हमारी महकूमियत है। आईने पाकिस्तान पर, हमारे कानूनी अमल पर मुसलसल हमले हो रहे हैं पिछले 3 साल से, तमाम निज़ाम को खोखला कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई अमल फिर ये करते हैं कि वहाँ मसनूई तौर पे दो तिहाई अक्सरियत पैदा करते हैं, जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, तमाम तर धांधली के बावजूद KPK असेंबली में 85% सीटें PTI ने जीती। अब उस 85% की अक्सरियत को कैसे ये 1 तिहाई से कम करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए, मगर वो आएंगे नहीं। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI के बेटों को भी पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क से क्या खिलवाड़ किया है। खबर आ रही है कि इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो वापस आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज करने जा रही है उसको लीड करना चाह रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है जी, उनके लोगों के बच्चों को सड़कों पे, और लोगों के बच्चों को वो कहते हैं जी कि आप कीलों वाले डंडे लेकर जाएं, और लोगों के बच्चों को वो कहते हैं कि अभी आप लॉन्ग मार्च करें, चढ़ाई कर दें, यहाँ पर बगावत कर दें, और अपने बच्चे उनके लंदन की ठंडी हवाओं में गोल्ड स्मिथ के दिए हुए बेपनाह पैसे में वहाँ पर ऐश कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को आना चाहिए, और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है, और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये आएंगे नहीं। ये पीछे जो स्पॉन्सर है, जो एक पूरी लॉबी पूरी दुनिया में इस आदमी को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, ये उनका पाला हुआ बच्चा है। उन्होंने इसको दामाद बनाया। फिर उस इसराइल ने ईरान पे, हमारे हमसाए पे, हमारे ब्रदर मुल्क पे हमला कर दिया। एक लफ्ज़ इसराइल के खिलाफ बानी PTI के ना मुंह से निकला, ना ट्विटर अकाउंट से आया, ना कोई बयान आया। तो ये उन्हीं के बच्चे हैं। ये इन्हें चाहिए कि अपने सबसे पहले अपने वालिद से भी पूछे, और अपने
नानकों से इनका तल्लक नानकों से ज़्यादा है या पाकिस्तान से ज़्यादा है? वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान बरतानवी शहरी हैं। अगर उनका मकसद सियासी इंतशार फैलाना है तो पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बैरिस्टर अकील की बात पर रद्द-ए-अमल देते हुए रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक ने कहा कि कासिम और सुलेमान सियासत करने नहीं बल्कि अपने वालिद की रिहाई के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बानी PTI ने जवां मर्दी से जेल काटी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी ये कासिम और सुलेमान क्यों नहीं पाकिस्तान आते, तो अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप कहते हैं इनको पकड़ लेंगे। पहली तो बात है कि वो बच्चे बरतानवी शहरी हैं। बरतानवी शहरी यहाँ पे आके पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा नहीं ले सकता और ना इसकी कानून इजाज़त देता है। तो अगर कोई उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़े पे आके ये कोई शादी ब्याह तो नहीं है, ये कोई सैर व तफरीह के लिए तो नहीं आ रहे, ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं या उस इंतशार में अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ की तो ममानियत है, इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दी। तो आप कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान ही नहीं आने दिया जाए। अगर वो वीज़ा लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से कंसर्न अथॉरिटी ज़रूर देखेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कि उनका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। जब पर्पज़ ऑफ विज़िट वो ये टूरिज़म या टूरिस्ट एक्टिविटीज़ तो नहीं लिख रहे, वो तो वहाँ पे लिख रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने। अब जब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने आएंगे, मेरे नहीं ख्याल कि वीज़ा फॉर्म पे कोई ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। सलमान और कासिम आ क्यों रहे हैं? बुनियादी सवाल आपका ये है, अगर वो पाकिस्तान में सियासत के लिए आ रहे हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ में कोई किसी पोजीशन के लिए आ रहे हैं, या MNA बनने आ रहे हैं, या सेनेटर बनने आ रहे हैं, या तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने आ रहे हैं, तो इनका एतराज़ जायज़ है। वो अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए आ रहे हैं। कोई इसमें शक नहीं कि पॉपुलर है, बिल्कुल है, और खान साहब इस वक्त लीडर हैं, और ये भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने बड़ी जवामर्दी से कैद काटी है। नासिर हुसैन शाह साहब वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने बड़ी जवामर्दी से जेल काटी है। लेकिन इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने अच्छा करते हैं। हाँ नहीं, ये तो एक फैक्ट है ना जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक के लिए तैयारियां जारी हैं। जुमे की शाम कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। पंजाब में भी एहतजाज के लिए कमेटियों का ऐलान किया जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए नईम पंजोथा ने कहा कि 5 अगस्त को PTI की तहरीक का उरूज होगा। बानी PTI ने कहा है कि इस दफ़ा एहतजाज का मकाम डी चौक नहीं होगा। कासिम और सुलेमान अपने वालिद से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान आएंगे। एहतजाजी तहरीक में बानी की बहनें भी शामिल होंगी मगर क़यादत नहीं करेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मोदी हुकूमत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए हमने वाक़े की खुली और शफाफ तहकीकात का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने कभी किसी गिरोह को अपनी सरजमीन से भारत पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बरे सगीर में अमन का केस सिर्फ पाकिस्तान ही का मकसद नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नई तकदीर की बुनियाद रख सकती है। करण थापर को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्हें पता था भारतीय मीडिया पर उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम खास तौर पर नौजवानों पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारा मुस्तकबिल माजी के तनाज़ात नहीं होंगे। हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद पर अमन, बकाए, बाहमी ताउन और खुशहाली पर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार आलमी तहजीबों के मुकालमे पर वजारती इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुँच गए। चीनी वजारत खारिजा के इश्तिराक से 10 और 11 जुलाई को इजलास मुनक्किद होगा। अतातार का कहना है कि ये इजलास दुनिया भर की तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और सीखने के जज्बे को फ़रोग़ देने का मुनफरिद मौका है। तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही आलमी हम आहंगी, अमन और तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान इस अमल में अपना फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मीडिया और सकाफती ताउन दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने का जरिया बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे डिफेंस कराची के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट में पुलिस सर्जन ने बताया कि लाश इंतहाई ख़राब हालत में है, जिसके बायस मौत की वजह का तयन ना हो सका। DNA और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए सैंपल ले लिए गए हैं, जिनके तज्ज़िये के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे।
स्वात में बेटे ने मुबैना तौर पर मां को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि लड़के की मां ने खुला की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत पेशी पर लड़के ने मां पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक खातून का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। खातून ने खुला का केस दायर किया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स आई तो बेटे ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया है। रावलपिंडी के नवाही इलाका थाना रवार ढोक चौधरियां तख्तपड़ी में मुबैना तौर पर बाप ने सोशल मीडिया अकाउंट बंद न करने पर बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मकतूला के वालिद मुलजिम अखलाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि लियारी में गिरने वाली इमारत समेत तमाम मखदूश इमारतों के मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। उन्हें मुतबादिल रिहाइश की फराहमी के लिए कमेटी भी बना दी गई है। तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया कराची में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैफुद्दीन एडवोकेट की सरबराही में जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी से मुलाकात की और उन्हें कराची में गैर कानूनी तामीरात, पानी और सेवरेज के मसाइल, वाटर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट के अदम ताउन से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा कि मखदूश इमारतों में रहने वालों को अपनी सलामती के लिए रिहाइश छोड़ना होगी। उन इमारतों के जो मकीन हैं, जो इनमें रिहाइश पजीर हैं, उनके हवाले से एक फौरी तौर पर जो एक इमीडिएटली एक फ़ैसला किया गया कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग क्योंकि वो बेघर हो गए हैं तो उनको फिल वक्त हम 3 महीने का किराया हुकूमत सिंध फराहम करेगी ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। जमात इस्लामी के नायब अमीर और बल्दिया कराची में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैफुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि इनके वफ्द ने सिर्फ शहरी मसाइल पर बात की है। जमात इस्लामी ने सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन के हवाले से तजावीज़ दी हैं। हमने मुतालबा ये किया है कि बिल्डर्स को और जो वहाँ के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर वगैरह हैं, इन सबको इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए और इनको पनिश किया जाना चाहिए। दूसरी बात हमने की कि जिन बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जो मखदूश हैं, हमने ये कहा था कि 6 महीने का किराया दिया जाए। सईद गनी साहब ने कहा कि 3 महीने का हम दे रहे हैं और मज़ीद इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जिन बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है उनके मालिकान को मुतबादिल फराहम करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सईद गनी ने कहा कि आज की मुलाकात में जमात इस्लामी की तरफ से कई मुस्बत तजावीज़ दी गई हैं। इन पर अमल से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन सैयद महबूब अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम अफसरान से उनके असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नए डायरेक्टर जनरल शाहमीर भुट्टो ने हिदायत की है कि तमाम अफसरान अपने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड जमा कराएं। सुलेमान सादत खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले अफसरान के गिर्द घेरा तंग हो गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए डायरेक्टर जनरल शाहमीर भुट्टो के हुक्मनामे ने इदारे के अंदर खलबली मचा दी है। जियो न्यूज ने डीजी के खुफिया अहकामात की जो कॉपी हासिल की, उसके मुताबिक SBCA के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को हुक्म दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर अपने 5 साल असासों का रिकॉर्ड दफ्तर में जमा कराएं। तमाम मुलाजमीन को वक्त पर दफ्तर आने और हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया है। SBC हुकाम का कहना है कि अदारा जाती साख की बेहतरी के लिए शफाफियत अव्वलीन तरजीह है और कराची समेत सूबे भर में गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारे के मुलाजमीन की मजमूई तादाद 1800 के लगभग है, जिनमें 900 के करीब अफसरान हैं। सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। भारत में मोदी हुकूमत की किसान और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 10 मजदूर तंजीमों ने बुध के रोज मुल्क की हड़ताल की। ट्रेड यूनियंस के मुताबिक 25 करोड़ से ज्यादा मजदूरों और किसानों ने हड़ताल में शिरकत की। भारत के कई शहरों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हुए हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन बंद रहे हैं। मजदूर तंजीमें अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। कई शहरों में मुजाहरे किए गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया है। भारत में मोदी हुकूमत की किसान और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 10 मजदूर तंजीमों ने बुध के रोज मुल्क की हड़ताल की।